आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लवर्स पे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि होमिसाइड क्या है। होमिसाइड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लॉफुल एंड अनलॉफुल। एंड लॉफुल होमिसाइड को भी फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्सक्यूजेबल, एक जस्टिफिएबल। लाइक जो आपके जनरल एक्सेप्शन है, लाइक 66, 79, 77, 81, 100, 103, प्राइवेट डिफेंस, ये सब आपके जस्टिफिएबल एक्ट है। ओके, सो होमिसाइड इज बेसिकली मींस किलिंग ऑफ ए मैन बाय अनदर human being. And unlawful homicide means killing of a man by another human being, which is law is not permit, and it is punishable. So when law permit killing of a man by another man, it's called justifiable or excusable. Like हम लोग बात कर सकते हैं जनरल एक्सेप्शन के बारे में यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 299 लाइक कल्पेबल होमिसाइड। तो उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि what is knowledge and what is intention. So like it's given, like forcibility of consequences of any act is called knowledge. And the forcibility of consequences of any act plus desire to do that act is called intention. Okay, so intention or knowledge both are mandatory. Like only the section 299, which is talking about separately about the knowledge and intention. सो ओनली सेक्शन 299 है जो आपके इंटेंशन और नॉलेज के बारे में अलग अलग बात करता है। अब हम लोग समझते हैं कि समझने के लिए मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, लाइक देयर इज अ ब्लैक इंटेंशन, देयर इज अ डार्क ग्रे इंटेंशन एंड देयर इज अ ग्रे इंटेंशन। सो आपको समझाता हूँ ये होती क्या है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इंटेंशन को। ब्लैक इंटेंशन मीन्स like there's a desire, intense desire to kill. So is a culpable homicide of first degree. Second, like there's a dark gray intention, so culpable homicide of second degree. There's a not so intense desire, but there's a desire to kill somebody. And the third one is gray intention, like there is no desire to kill but knowledge, like मेरे इस एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है। सो इट्स अ कल्पेबल होमिसाइड ऑफ थर्ड डिग्री। ओके, सो यहाँ पे तीन तरह की इंटेंशन है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटेंशन समझ लेते हैं, एक बार मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ। ब्लैक इंटेंशन, दैट्स मीन कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री, दैट मीन देयर इज अ इंटेंस डिजायर टू किल समबडी। Then second degree, like culpable homicide of second degree, there's a not so intense desire to kill somebody, but there's a desire. Okay, and then third, there's no desire to kill somebody, but there's a knowledge. Okay, there's a like culpable homicide of third degree. Okay, so now हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 299 culpable homicide. Whoever caused death by doing an act with the intention of causing death, यानी कि ये हो गया हमारा ब्लैक इंटेंशन फर्स्ट डिग्री। ओके, देन और विद द इंटेंशन ऑफ causing such bodily injury as likely to cause death, this is like dark gray intention. So with the intention to causing death, okay, like such kind of bodily injury, or with the knowledge that he is likely to likely by such an act cause death, commit the offense of culpable homicide. Okay, so now I explain you this whole, like whoever caused death by doing an act with the intention to causing death, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि he have the desire, intense desire to kill. Okay, and then act with the intense desire. So the so वहाँ पे culpable homicide होगा second, or with the intention to causing that such bodily injury as likely to cause death। और दूसरा, इस तरह की इंटेंशन इतने लाइक इंटेंस डिजायर नहीं थी पर डिजायर थी, तो उसने उस तरह की डिजायर से इंजरी करी तो डेथ होगी। एंड सेकंड, उसको पता था कि उसके लाइक देयर इज नो डिजायर टू किल समबडी, बट ही हैव द नॉलेज कि उसके इस एक्ट से डेथ कमिट हो सकती है। सो वो कल्पेबल होमिसाइड है। नाउ हम लोग इसको समझने के लिए अभी स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन वन। ओके, so illustration one I just read for you.
A. Lay stick and turn over a pit with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z. Believe the ground to be firm, tread on it, falls in, and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. क्या है यहाँ पे, एक ए बंदा था, तो उसने एक स्टिक से रोड में गड्ढा खोद दिया और फिर उसको उसने ऐसे कर दिया, ऐसे लग गया कि यहाँ पे प्लेन है। सो उसको ऐसे समझ के जी वहां से गुजर रहा था, जेड, और वो उस गड्ढे में गिर के मर गया। तो यहाँ पे जो आपकी ए ने डेथ कमिट की है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि अब उसने कुछ पर्टिकुलर बंदे की तो डेथ कमिट नहीं कर रहा था, बट बिकॉज उसकी इंटेंशन थी कि जो भी इसमें गिरेगा वो मर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे होगा ट्रांसफर ऑफ मैलिस, कि डेथ कोज होगी उसकी इंटेंशन के साथ में। तो यहाँ पे जो किसी और को मारने की इंटेंशन से थी और कोई और मर गया, तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाएगा। बट यहाँ पे उसने किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं थी, कोई भी आए और मर जाए, उसकी इंटेंशन थी कि मरना चाहिए। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड होगा। नाउ वी विल डिस्कस illustration B. A knows Z to be behind a bush. ये जानता था कि Z Z बुश बिहाइंड द बुश, झाड़ियों के पीछे है। B does not know it, but B को ये नहीं पता था। A intended to cause, or knowing it likely to be cause the death, induce B to fire at the bush. ये जानते हुए कि झाड़ियों के पीछे Z है, B को इंड्यूस करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, और इस इंटेंशन से B को बोलता है कि आप झाड़ियों में एक गोली मार के दिखाओ मुझे। अब बी फायर एंड किल जी, बी फायर कर देता है और जेट मर जाता है। हियर बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, यहाँ पे बी किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, बट ए हैज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। बट यहाँ पे ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है। उसने बी को अबेट किया, बी को उकसाया कि तुम मुझे गोली चला के दिखाओ, और इसकी वजह से जेड मारा गया। तो क्योंकि बी को तो पता नहीं था कि झाड़ियों के पीछे कोई है, बट ए को ए ने ए को पता था, और उसने बी को अबेट करके मरवा दिया। तो ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो। इलस्ट्रेशन सी, A by shooting a fowl with the intent to kill and steal it. A शूट करता है एक पंछी को मारने के लिए और उसको चुराने के लिए। किल बी विद बिहाइंड द बुश, और बी को मार देता है जो कि झाड़ियों के पीछे था। ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर, ए को नहीं पता था कि वो वहां झाड़ियों के पीछे है। हियर ऑल्दो ए वाज डूइंग ए अनलॉफुल एक्ट, हालाँकि यहाँ पे जो एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो उसको पंछी को मार के चोरी करना चाह रहा था। ही वाज़ नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, बट वो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होगा, एज़ ही डिड नॉट इंटेंटेड टू किल बी, बिकॉज़ उसकी इंटेंशन यहाँ पे बी को मारने की नहीं थी, और to cause the death by doing an act that he knew was likely to cause death, और वो कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहा था कि जिसकी वजह से बी की डेथ हो जाए। तो यहाँ पे जो ए है वो लायबल होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए, क्योंकि वो उसको मार के चोरी करना चाह रहा था, बट यहाँ पे वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एक्सेप्शन वन, 299 की कुछ एक्सेप्शन है। सो आई एक्सेप्शन नंबर वन आई जस्ट डिस्कस विद यू। A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease, or bodily infirmity, and thereby accelerate the death of that other, shall be deemed to be have caused his death. So इस केस में क्या होगा, जो ए पर्सन है वो उसको मतलब कुछ बीमारी है,
या मेंटल डिसऑर्डर या बॉडीली इन्फिनिटी है, बिकॉज ऑफ दैट वो डेथ कोज कर देता है किसी और की, तो इस केस में क्या वो लायबल होगा? द क्वेश्चन इज डेट। सो ये आएगा आपका कि डेथ कोज इनएडवर्टेंटली विदाउट इंटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सेप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। सो अगर उसने अनजाने में डेथ की है तो फिर वहां पे वो एक्सेप्शन नंबर 1 के अंदर आ जाएगा। ओके, और वो लायबल नहीं होगा। सो illustration 2, where death is caused by bodily injury, the person who caused such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedy and skillful treatment, the death might be have been prevented. सो इस केस में क्या है, हम बोल रहे हैं कि जो पर्सन है उसने उसको ऐसी बॉडीली इंजरी क्रिएट की कि उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, बट बिकॉज ऑफ अगर उसको स्किलफुल ट्रीटमेंट मिल जाता तो डेथ को रोका जा सकता था। तो यहाँ पे उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्चुअली उसको। लाइक सपोज किसी ने किसी को बहुत तेज से कुछ वेपन से या सिर पे मार दिया, उसके सिर में इंजरी होगी और डॉक्टर के लेके आ रहे हैं, बट डॉक्टर वहां पे स्ट्राइक पे है और डॉक्टरों ने उस टाइम पे वहां पे ट्रीटमेंट नहीं दिया, बिकॉज ऑफ वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, पेशेंट की डेथ हो गई। तो उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या सपोज सपोज किसी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं और रास्ते में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में हम लोग ये चेक करेंगे कि द कॉज ऑफ द डेथ इज डेथ रीजन, डेथ इंजरी। बिकॉज ऑफ डेथ इंजरी अगर डेथ हुई है तो फिर उसको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि उसको स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया जिससे उसको बचाया जा सकता था। सो यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। Explanation 3, the causing of death of a child in the mother womb is not homicide. अगर किसी माँ की बच्चा गर्भ में है और अगर उसको मार दिया जाता है तो वो फिर होमिसाइड नहीं होगा, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड to cause the death of a living child if any part of the child has been brought forth, though the child may not have breath or been completely born. सपोज अगर बच्चे का एक भी अंग बाहर आ गया और उसके बाद बच्चे की डेथ होती है, बच्चे को मार दिया जाता है, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड है। अगर वोम्ब में ही मार दिया जाता है, अगर गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो फिर हम लोग उसको 312 में ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पे फिर वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। बट अगर बच्चा बाहर आ जाता है और फिर उसको मारते हैं तो फिर वो आपका कल्पेबल होमिसाइड होगा। लाइक क्या होता था पहले, गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ और उसको मार दिया, तो फिर उसको हम लोग कल्पेबल होमिसाइड में ही कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।